کورونا وبا اور اندوہناک طیارہ حادثہ، ملک بھر میں عید الفطر سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ شہر شہر حفاظتی انتظامات کے ساتھ نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ لاہور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں ہوا۔ داتا دربار مسجد میں بھی نماز عید کی ادائیگی۔ اجتماعات میں ملک کی ترقی اور مسلم امہ کے اتحاد کے لیے دعائیں۔ 92 نیوز کی جانب سے اہل وطن اور اہل اسلام کو عید مبارک۔ عید مستحق افراد کی دلجوئی اور انہیں خوشیوں میں شریک کرنے کا دن ہے۔ صدر عارف الوی کہتے ہیں کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، ہم آہنگی، صبر و تحمل اور حسن سلوک کو مستقل طور پر اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ کہا، دعا ہے اللہ تعالیٰ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہماری رہنمائی فرمائے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے عید کی نماز راولپنڈی میں ادا کی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نے پشاور میں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ میں نماز عید ادا کی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں عید کی نماز ادا کی۔ خاص طور پر میں دعا گو ہوں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے۔ سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز کی وجہ سے ان کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، گھروں کو جلایا جا رہا ہے، اور پوری مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو جو صحبتیں کو برداشت کر رہے ہیں وہ داستانیں سنی نہیں جا سکتی۔ کمزوری سمجھنا غلط فہمی ہے۔ طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری۔ پی آئی اے انویسٹیگیشن ٹیم کی ماڈل کالونی میں جائے حادثہ برآمد، جہاز کے پرزوں کا معائنہ کیا۔ ادھر ترجمان پی آئی اے عبداللہ خان نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پائلٹ نارمل لینڈنگ پر اپروچ کرتا ہوا آیا۔ واقعے کی تحقیقات کے بعد ہی حقائق سامنے آئیں گے۔ ابھی جو بھی چیز ہوگی وہ قیاس پر مبنی ہوگی۔ کراچی میں طیارہ حادثہ، 92 نیوز رن وے پر طیارے کے رگڑ کھانے کی فوٹیج سامنے لے آیا۔ مسافر طیارے کے رن وے پر کافی دور تک رگڑنے کے نشانات واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ جی ایم پبلک ریلیشنز پی آئی اے عبداللہ خان نے تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں یہ مناظر کراچی ایئرپورٹ کے ہی ہیں، رن وے دوسری پروازوں کے لیے فعال ہے۔ لینڈنگ سے پہلے رفتار و بلندی زیادہ تھی۔ طیارہ حادثے کے متعلق اہم انکشافات۔ ذرائع کے مطابق ایئر ٹریفک کنٹرول کی 2 بار ہدایت کے باوجود پائلٹ جہاز کو مطلوبہ بلندی اور رفتار پر نہ لایا۔ جب لینڈنگ کی کوشش کی تو ٹائر نہ کھلے، انجن زمین سے لگنے سے متاثر ہوئے، پائلٹ دوبارہ بلندی حاصل نہیں کر سکا، پھر طیارہ بے قابو ہو گیا۔ طیارے میں 3 ماہ کا سرور صاحب نے ٹائم دیا ہے، جو اس میں لوگ سزاوار پائے گئے ان کو سزا دی جائے گی۔ لاک ڈاؤن دوبارہ نہیں ہوگا، مجھے امید ہے انشاءاللہ، اور یہ کاروباری ادارے کھلے رہیں گے۔ چینی پہ فرنزک رپورٹ آ گئی ہے اور اب آٹے پہ آنے والی ہے۔ طیارہ حادثے میں جو بھی قصوروار پایا گیا اس کو سزا ملے گی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں غلام سرور خان اور سی ای او پی آئی اے اس پر کام کر رہے ہیں۔ 31 تاریخ تک اسی طرح ٹرینز چلیں گی، لاک ڈاؤن دوبارہ نہیں ہوگا۔ چینی کا کیس ایف آئی اے اور آٹے کا نیب کے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طیارہ حادثے میں شہید پائلٹ کیپٹن سجاد گل اور شہید خالد شیردل کی رہائش کا آمد، اہل خانہ سے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ کہتے ہیں عید پر اہل خانہ کا دکھ بانٹنے آیا ہوں، شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ عید کے پرمسرت موقع پر آپس کے اختلافات ختم کر کے ایک متحد قوم بن کر ابھرنا ہوگا۔ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کا پیغام۔
कहा, कोरोना से मुकाबला करने वालों को याद रखना होगा, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत हर उस फोर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। सिंध में सिर्फ 20 रोज के दौरान कोरोना मुतासरा बच्चों की तादाद में 3 गुना इजाफा। 2 मई तक कोरोना वायरस में मुब्तला बच्चों की तादाद 253 थी, 20 रोज में बढ़कर 788 हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, खुदारा हुकूमती SOPs पर 100% अमल दरामद करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सब्जे के दुश्मन टिड्डी दल ने मुल्तान पर यलगार कर दी। बड़ी तादाद में टिड्डी दल की आमद से शहरी परेशान। टिड्डी दल ने खानेवाल में भी हमला कर दिया, फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान। किसान ईद की खुशियां भूलकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। कराची में ईद उल फितर के मौके पर भी डकैत सरगर्म। शराय फैसल पर शहरियों से छीना झपटी। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को लूट लिया, मज़ाहिमत पर धक्का देकर जमीन पर गिराया और फरार हो गया। बड़े सालों से ईद मनाते आ रहे हैं, एक दूसरे से गले मिलते आ रहे हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, किसे अच्छा नहीं लगता। इस दफा थोड़ा सा माहौल मुख्तलिफ हो गया। 92 न्यूज की वसादत से ईद गुजारिए हमदर्दी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हिना मलिक और आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और अल्लाह पाक से दुआ है कि इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन एंड ईद मुबारक। और शोबे सितारों की कौम को ईद की मुबारकबाद। उस्ताद हामिद अली खान, अली जफर, जवाद अहमद, आरिफ लोहार, हिना और सऊद ने अपने पैगाम में कहा कि इस ईद पर जरा एहतियात करें और लोगों के साथ खुलूस से पेश आएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है 92 न्यूज और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं अरूबा खान। बुलेटिन में कुछ मीठी ईद के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे तैयारा हादसे के हवाले से। कराची में PIA के तैयारे को हादसा कैसे पेश आया, तैयारे के रनवे पर लैंडिंग के वक्त क्या सूरत हाल थी। 92 न्यूज रनवे की एक्सक्लूसिव फुटेज सामने ले आई। 92 न्यूज की स्क्रीन पर चलने वाली एक्सक्लूसिव फुटेज में आप देख सकते हैं कि इंजन्स के रनवे पर रगड़े खाने के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। फुटेज देखकर अंदाजा होता है कि तैयारे के इंजन्स काफी दूर तक रनवे से रगड़े खाते रहे। फुटेज में काले रंग के निशानात दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए GM पब्लिक रिलेशंस अब्दुल्ला खान ने 92 न्यूज पर चलने वाली एक्सक्लूसिव फुटेज की तस्दीक करते हुए कहा है कि ये फुटेज कराची एयरपोर्ट के रनवे की ही है। जहाज रनवे से कैसे टकराया, रनवे पर रगड़े मनाजिर सिर्फ 92 न्यूज पर। बाखबर बावसूख 92 न्यूज एक बार फिर सबसे आगे। कराची में PIA के तैयारे को हादसा कैसे पेश आया, तैयारे की रनवे पर लैंडिंग के वक्त क्या सूरत हाल थी। 92 न्यूज रनवे की एक्सक्लूसिव फुटेज सामने ले आया। 92 न्यूज की स्क्रीन पर चलने वाली एक्सक्लूसिव फुटेज में आप देख सकते हैं कि इंजन्स के रनवे पर रगड़े खाने के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। फुटेज देखकर अंदाजा होता है कि तैयारे के इंजन काफी दूर तक रनवे से रगड़े खाते रहे। फुटेज में काले रंग के निशानात दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए GM पब्लिक रिलेशंस अब्दुल्ला खान ने 92 न्यूज पर चलने वाली एक्सक्लूसिव फुटेज की तस्दीक करते हुए कहा कि ये फुटेज कराची एयरपोर्ट के रनवे की ही है। रनवे दूसरी परवाजों के लिए फाल है। अब्दुल्ला खान ने कहा, इस सानहे पर बयानबाजी के बजाय इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। जो फुटेज अभी आपके पास चल रही है, ये कल सिविल एविएशन की टीम जिन्होंने इनिशियली क्रैश के फौरन बाद रनवे को इंस्पेक्ट किया था, उन्होंने ये फुटेज बनाई थी और ये वही फुटेज आपके पास है जो कि
रनवे मार्कर 4500 फीट के ऊपर आई। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ का कहना था उन्हें खदशा है कि हादसा पायलट की गलती के बायस पेश आया। शाहिद लतीफ ने कहा तैयारे ने लैंडिंग की तो 1 मील तक इंजन रगड़ खाते रहे। लैंडिंग के बायस दोनों इंजन को बैक वक्त नुकसान पहुंचा। तैयारे ने लैंडिंग की तो गियर डाउन नहीं हुए। ये पायलट एरर है। ये अजीब बातें हो रही हैं कि बर्ड लग सकता है, फलाना हो सकता है। बात ये है कि जब फर्स्ट टाइम तैयारे को आपने लैंड किया और उसके जो इंजन हैं वो जमीन पे रगड़ खाते हुए 1 मील तक चलते गए तो आप देखें कि उनका कितना डैमेज हुआ। वो जो इंजन दोनों एट ए टाइम खराब हुए हैं, खत्म हुए हैं, उनको डैमेज हुआ है मेरे मुताबिक। ये मेरी स्पेकुलेशन है क्योंकि इसका अभी तक कोई जवाब ही नहीं दे रहा। इस चीज को वो गोल कर रहे हैं कि जो गियर उसके डाउन कह रहे हैं, जब लैंड कर रहा था तो पता चला गियर डाउन नहीं हुआ। ये तो इतनी ऊंचाई के ऊपर गियर डाउन करके फिर आप लैंड करने आते हैं, तो उसको पता नहीं था क्या मिस्टेक हुई है, गियर डाउन करने ही वो भूल गया। ऐसे भी हो जाता है और ये उस वक्त पता चला जब वो लैंड कर रहा था, बट बाई देन तैयारा जमीन को टच किया तो लाजमी चीज है उसके इंजन जो है वो फिर जमीन से रगड़ खाएंगे। उन्होंने जब रगड़ खाई है तो इतना इम्पैक्ट इतनी स्पीड पे इंजन में रह किया गया, तभी तो वो दोनों इंजन जो है वो बैठ गए बिल्कुल। मेरा सवाल जो असल में ये है कि अगर पायलट को पता होता कि इंजन के गियर का प्रॉब्लम है तो उसने इमरजेंसी लैंडिंग डिक्लेयर क्यों नहीं की? उसने कोई इमरजेंसी लैंडिंग डिक्लेयर नहीं की। ये जो गियर अप लैंडिंग है, इसको आप बेली लैंडिंग भी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। इसका एक प्रोसीजर होता है। उसने इमरजेंसी लैंडिंग नहीं डिक्लेयर की। मेरे मुताबिक ये कहीं मिस्टेक हुई है जो उसने गियर वॉच नहीं किए, लास्ट मिनट में पता चला है और इतनी देर में चूंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था तो जहाज जमीन पे रोल करता रहा, इंजन जो है वो रगड़ खाते रहे और इंजन खत्म हो गए। इसीलिए टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद वो दोनों इंजन पैकअप कर गए। विंग कमांडर रिटायर्ड नसीम अहमद ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पायलट ने जब लैंडिंग की तो गियर अप थे। लैंडिंग गियर अप हो तो इंजन ही रनवे से टकराता है। पायलट ने तैयारा जब दोबारा उड़ाया तो इंजन को नुकसान पहुंच चुका था। मोहम्मद जुबैर का जो बयान पड़ा है उससे फिर मुझे ये पता चला ये जो भी एयर क्रू था इन्होंने नॉर्मल लैंडिंग करने की कोशिश की है और जब लैंडिंग की है उस दिन के लैंडिंग गियर अप थे और शायद इनको इसका पता नहीं था। यह पता चला है तो इतनी देर के बाद इन्हें पता चला है कि इन्होंने गो राउंड करने की कोशिश की है तो उस गो राउंड में जहाज टकराता हुआ ऊपर चला गया। ये इंकशाफ है। कल रात को मैंने मोहम्मद जुबैर का इंटरव्यू सुना, इससे मुझे अंदाजा हुआ और फिर आज जो इन्फॉर्मेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने दी है जो कल भी थी लेकिन वाज़ेह नहीं थी कि इसके दोनों इंजन जो है, क्योंकि जब लैंडिंग गियर अप होते हैं और जहाज जमीन से टकराए तो इंजन ही टकराएंगे, जहाज का पेट नहीं टकराता। तो वो जो कल इम्प्रेशन आ रहा था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स नहीं खुल रहे थे और बेली लैंडिंग के लिए उसे सेकंड राउंड दिया गया, वो चीज़ गलत साबित हो गई है। एयरपोर्ट पे ना कोई ऐसी तैयारी हुई थी बेली लैंडिंग की, ना इमरजेंसी सर्विसेज को किया गया था। ये नॉर्मल लैंडिंग के लिए आया है और दोबारा टेक ऑफ कर गया क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि हमारे लैंडिंग गियर्स डाउन है और फिर दोबारा जब गया है तो इंजन डैमेज हो चुके होंगे और ये रनवे तक नहीं आ सका। ये है सूरत हाल जो अब तक मेरी समझ में आई है। रनवे के मनाजिर और हवाबाजी के माहिरीन के तज्जिये से चंद सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल, कि ऐसी सूरत में जब इंजन रनवे से रगड़े खाने के बाद बुरी तरह मुतासिर हो गए, पायलट को जहाज ऊपर उठाना चाहिए था। दूसरा सवाल, रनवे के मनाजिर से पता चल रहा है तैयारा काफी दूर तक रगड़े खाता रहा और ऐसी सूरत में इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा। क्या ऐसी हालत में पायलट का तैयारा ऊपर उठाना दुरुस्त फैसला था? तीसरा सवाल, क्या वजह है कि पायलट को लैंडिंग गियर ना खुलने का पता बर वक्त ना चल सका? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची एयरपोर्ट के करीब ऊंची इमारतों की तामीर को जुर्म करार दे दिया है और मुतालबा किया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुक्काम से भी पूछगछ की जाए। दूसरी जानिब ईद के बाद जहाज का मलबा नहीं उठाया जा सका। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में ईद की खुशियों से 2 दिन पहले खौफनाक हादसा। एयरपोर्ट के करीब अपनी मंजिल से चंद सेकंड्स पहले कौमी एयरलाइन का बदकिस्मत तैयारा तबाह हो गया।
हादसे का शिकार होने वाले तैयारे का मलबा उठाने का काम आज मुअत्तल रहा, जबकि मुतासरा गली को कनातें लगाकर मुकम्मल बंद कर दिया गया। PIA की इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी जाए हादसा का दौरा करके जहाज के पुर्जों का मुआयना किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हादसे में जाँ बाख होने वाले शहरी शब्बीर अहमद के घर पहुँचे और अहले खाना से ताज़ियत की। इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू में एयरपोर्ट के करीब ऊंची इमारतों की तामीर को क्राइम करार दिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी तफ्तीश में शामिल करने का मुतालिबा किया। एयरपोर्ट के अतराफ में 4 मंजिला बिल्डिंगें बनी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मैं उनसे ये कहूँगा कि इस इन्वेस्टिगेशन में SBCA को भी शामिल करें कि किस तरह उन्होंने एयरपोर्ट के रनवे के साथ बड़ी बिल्डिंगों की इमारतों की इजाजत दी। गवर्नर सिंध ने बताया कि वजीर आजम से एयरपोर्ट को सुपर हाईवे की तरफ मुंतकिल करने की सिफारिश की है। मेरे पास कल जब वजीर साहब तशरीफ लाए थे तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट ये भी की थी कि एयरपोर्ट अब शहर की गुंजान तरीन आबादी के बीच में आ चुका है और एयरपोर्ट को यहाँ से हाईवे की तरफ मुंतकिल करने के बारे में भी जरूर सोचें। तो वो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो इसके ऊपर एक जामे रिपोर्ट बना के वजीर आजम को पेश करेंगे और इस पर पेशरफ करने की कोशिश की जाएगी। इमरान इस्माइल का कहना था कि लाहौर से DNA टेस्ट के लिए माहिरीन की टीम कराची पहुंच गई है। और अब कुछ बात करेंगे मीठी ईद की। भारत ने कोरोना की आड़ में मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ा दिया। कोरोना से शहीद होने वालों के लिए दुआगो हूँ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कश्मीरियों के घर लूटे और जलाए जा रहे हैं। भारत ने जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तैयारा हादसे की इंक्वायरी हो रही है, ऐसा कहना था वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का। मैं पूरी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। गो ये ईद माजी की ईदों से मुख्तलिफ है। ये हम अफसरदा हैं। जो कराची का सानिया हुआ, PIA का जहाज का क्रैश हुआ, उसमें हमारे बहुत से मासूम शहरी अल्लाह को प्यारे हुए। पूरी कौम को उनका गम है, बेहद तकलीफ है, कर्ब में मुब्तला हैं। वो खानदान जिनके अजीज व अकारिब जहान फ़ानी से रुखसत हुए, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये ईद एक अजीब माहौल में मनाई जा रही है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की लपेट में है। लाखों लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं। 3 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और बहुत से हमारे पाकिस्तानी भी इस मर्ज में मुब्तला भी हैं, कुछ सेहतयाब भी हुए हैं और कुछ हमें छोड़ भी गए हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिल बेहतर फरमा दे। ख़ास तौर पर मैं दुआ गो हूँ मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए। सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस की वजह से उनके घर लूटे जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है और पूरी मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को जो सोहबतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो दास्तानें सुनी नहीं जा सकती। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी जद्दोजहद में कामयाबी अता फरमाए। और वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं रुयत और शहादत का मसला है जो चांद पर बातें जारी हैं। तैयारा हादसे में जो भी कसूरवार पाया गया उसको सजा मिलेगी। गुलाम सरवर खान और CEO PIA इस पर काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि 31 तारीख तक इसी तरह ट्रेन चलेंगी, लॉकडाउन दोबारा नहीं होगा। चीनी का केस FIA और आटे का NAP के पास है। आज का मुबारक दिन है। मैं सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस खुश असलूबी से लोगों ने SOP पर काम किया है और ख़ास तौर पर उलमा ने तरावी में नमाज में जिस तरह कानून का एहतराम किया है, मैं सब उलमा किराम का शुक्रिया अदा करता हूं। लोगों ने भी ट्रेनों में जिस तरह 50% पैसेंजर्स पर हमने एक कोच रात को और लगा दी थी,
لیکن SOP پر ہم نے فرق نہیں آنے دیا تاکہ اس موذی مرض کا مل کر مقابلہ کریں. اب رمضان کا ایک مہینہ تھا، اس سے اللہ نے بخیر و عافیت ہمیں نکال لی ہے. اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم اور ذمہ داری سے اس مرض کا مقابلہ کریں اور اس مرض کے لیے احتیاطی تدابیر استعمال کریں. طیارہ بھی اللہ کا مسئلہ ہے ایسا، اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے اور طیارے میں 3 ماہ کا سرور صاحب نے ٹائم دیا ہے. جو اس میں لوگ سزاوار پائے گئے ان کو سزا دی جائے گی. لاک ڈاؤن دوبارہ نہیں ہوگا، مجھے امید ہے انشاءاللہ، اور یہ کاروباری ادارے کھلے رہیں گے. چینی پہ فرنزک رپورٹ آ گئی ہے اور اب آٹے پہ آنے والی ہے. میں جو خبر دے رہا ہوں عید کے دن، جو تھوڑی نرم سی خبر ہے کہ چین کی رپورٹ کے بعد پرائم منسٹر نے ہدایت کر دی ہے کہ آٹے کی رپورٹ بھی فی الفور سبمٹ کی جائے. اور اب آپ کو آگاہ کریں گے، آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول پر پونا سیکٹر کا دورہ، عید جوانوں کے ساتھ گزاری. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اگلے مورچوں پر نماز عید ادا کی. اسی پر بات کریں گے، فیصل رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ISPR کا یہ بتانا ہے کہ آرمی چیف نے اگلے مورچوں پر نماز عید ادا کی ہے، عید جوانوں کے ساتھ گزاری ہے. فیصل رضا ہمارے ساتھ موجود ہے. فیصل، آگاہ کیجیے گا، مزید کیا تفصیلات جاری کی گئی ہیں؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل ISPR نے جو تازہ ترین اطلاعات جاری کی ہیں ان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول پر پونا سیکٹرز کا دورہ کیا ہے اور عید جوانوں کے ساتھ منائی ہے. انہوں نے اگلے مورچوں پر جو ہے وہ نماز عید ادا کی اور اس موقع پر ملکی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی. آرمی چیف نے کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم جو ہے اس کی جو ہے وہ مانگا ہے اور آرمی چیف نے اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں سے خطاب بھی کیا ہے. اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے خاص طور پہ بھارتی فورسز کی جانب سے جو خلاف ورزیاں جاری ہیں ان کا بھرپور جواب دینے پر جوانوں کی تعریف کی. اس موقع پر جو ہے وہ آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج کے جوان دفاع وطن کی خاطر گھروں سے دور جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مادر وطن کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں اور دشمن کی ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ہر طریقے سے خدمات سر انجام دیتے رہیں گے. پاک فوج کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر جو ہے وہ عید سادگی سے منا رہی ہے. خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو ہے وہ اس وقت لائن آف کنٹرول پر مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. خاص طور پہ بھارت کی جانب سے مسلسل فائر بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے جوانوں کے عزم اور حوصلے کو سراہا. انہوں نے جتنے جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پر موجود خاص طور پہ جوانوں کے جو جذبہ ہے اس کو سراہتے ہوئے کہا کہ بھارت جو ہے وہ مسلسل لائن آف کنٹرول پر جو ہے وہ فائر بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. خاص طور پہ 5 اگست کے جو غیر قانونی یک طرفہ غاصبانہ اقدامات ہیں اس کے بعد جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم جو ہے وہ روا رکھا گیا ہے. غیر انسانی سلوک، خاص طور پہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن اور جو ہے وہ قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے. آرمی چیف نے واضح طور پر جو ہے وہ اس تمام صورتحال کا احاطہ کرتے ہوئے جو ہے وہ کہا کہ بھارت کے اندر اس وقت جو ہے وہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے وہ کشمیر کو تباہ جی ٹھیک ہے. آرمی چیف نے لائن آف کنٹرول پر پونا سیکٹر کا دورہ کیا ہے. فیصل، آپ نے آگاہ کیا، آپ کا شکریہ. ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. چھوٹی بڑی مساجد اور کھلے میدانوں میں عید کے اجتماعات منعقد کیے گئے. وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب نے لاہور میں نماز پڑھی، جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے اکثر رہنماؤں نے نماز اپنے آبائی علاقوں میں ادا کی. تفصیلات سہیب شاہد کی رپورٹ میں جانیے. ملک بھر میں عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایوان وزیر اعلیٰ میں عید کی نماز ادا کی. سماجی فاصلہ اختیار کرتے ہوئے تمام نمازیوں میں مناسب فاصلہ رکھا گیا. سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے گورنر ہاؤس لاہور میں عید کی نماز پڑھی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں عید کی نماز ادا کی.
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और अहल खाना के दीगर अफराद समेत पार्टी रहनुमाओं ने गुजरात में समाजी फासला रखते हुए नमाज अदा की। जामिया मस्जिद दाता दरबार में नमाजियों के लिए खसूसी इंतजामात किए गए। तमाम अफराद को हिफाजती तदाबीर अपनाते हुए दाखिले की इजाजत दी गई। नमाजियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए समाजी फासला इख्तियार करने की तलकीन की गई। मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी ने दाता दरबार में नमाज पढ़ाई। बादशाही मस्जिद में तमाम शहरियों को SOPs के तहत दाखिले की इजाजत दी गई और मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ईद की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद त्यारा हादसे में शहीद होने वाले अफराद की मगफरत, मुल्क और कौम की सलामती के लिए जबकि कोरोना से छुटकारे की दुआएं की गईं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असद अली के साथ सुहेब शाहिद, 92 न्यूज़ लाहौर। तैयारा हादसे के हवाले से आपको बताएं, रेंजर्स ने मलबे से मिलने वाला तमाम सामान PIA हुकाम के हवाले कर दिया है। तर्जुमाने सिंध रेंजर्स के मुताबिक जाए हादसा से बरामद सामान में मोबाइल फोन्स और लैपटॉप शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गोल्ड और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मुख्तलिफ अक़साम की घरेलू अशिया भी शामिल है। शराज अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे तफसीलात लेंगे। शराज, बताइएगा मलबे से क्या कुछ सामान बरामद हुआ है? जी बिल्कुल, तर्जुमान सिंध के मुताबिक मॉडल कॉलोनी में जो हादसा पेश आया जहाज को, उसमें जो मुसाफिरों की जरूरी और कीमती अशिया थी वो जो है वो रिकवर कर ली गई है। मलबे से सफाई के दौरान जो है शहरियों की कीमती सामान जिसमें मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसके अलावा सोने की ज्वेलरी जो है वो बरामद कर ली गई है और ये तमाम तर सामान बाहिफाजत PIA के हवाले कर दिया गया है। बरामद शुदा सामान में तकरीबन 3,24,000 की जो 300 झुलसी हुई पाकिस्तानी करेंसी भी मिली है। इसके अलावा मलबे से 16,67,000 रुपए जो है वो बरामद हुए हैं, 70 पाउंड। इसके अलावा $625 भी जो है इस मलबे से वो बरामद किए गए हैं। ताहम ये तमाम तर सामान जो है वो PIA हुकाम के हवाले कर दिया गया है और साथ ही साथ मजीद जो चीजें हैं, मजीद कार्रवाइयां जो हैं वो भी अमल में लाई जा रही हैं। ठीक, मजीद कार्रवाई भी की जा रही है। शराज अहमद तफसीलात दे रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार ईद के मौका पर गमज़दा खानदान का दुख बांटने उनके घर पहुंच गए। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले पायलट कैप्टन सज्जाद गुल और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्बन यूनिट खालिद शेरदिल के घर पहुंचे। उन्होंने अहले खाना से ताज़ियत के बाद फातह खानी की। दूसरी जानिब वजीर आला ने नासिर सलमान से मुलाकात भी की है। तफसीलात लाहौर से शाहिद चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। वजीर आला पंजाब शहीद पायलट कैप्टन सज्जाद गुल की रिहाइशगाह पर पहुंचे। उस्मान बुज़दार ने त्यारा हादसे में शहीद के वालिद, अहलिया, बेटे, बेटी और दीगर अहले खाना को दिलासा दिया और फातिहा ख्वानी की। वजीर आला पंजाब ने कहा, ईद पर सोगवार खानदान से इनका दुख बांटने के लिए आया हूँ। हमारा ईमान है कि शहीद जिंदा होते हैं। उस्मान बुज़दार त्यारा हादसे में शहीद होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्बन यूनिट खालिद शेरदिल की रिहाइशगाह पर भी पहुंचे। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने शहीद खालिद शेरदिल की वालदा, भाई मुजाहिद शेरदिल और दीगर अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शहीद खालिद शेरदिल एक फर्ज शनास और ईमानदार ऑफिसर थे। वो कोरोना वबा के दौरान भी फ्रंट लाइन पर काम करते रहे हैं। दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल नासिर सलमान ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। वजीर आला को ईद की मुबारकबाद देने के बाद नासिर सलमान ने कोरोना वायरस के इकदामात पर इनकी तारीफ की। मुलाकात में IG पंजाब शुएब दस्तगीर, मशीर ताजरान और PTI के सीनियर रहनुमा खुरम शहजादी मौजूद थे। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़ लाहौर। बुलेटिन में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल भी मुसलमानों की खुशियों में शरीक। मार्क बेरिंग ने वीडियो के जरिए मुसलमानों को ईद मुबारक का पैगाम दिया। Assalamu alaikum and Eid Mubarak. I'm Attorney General Mark Herring, and even though I can't be there in person, I wanted to send along my very best wishes to you and to your family as you gather on this wonderful occasion.
I hope you have had a meaningful and fulfilling holy month. It has been such a joy over the years for me to be with the Muslim community and to extend greetings as you gather on the Eid holiday. And I know we will do that again when it is safe to do so. You all have made me feel so welcome, and for that, I cannot thank you enough. And so to you and to your families, I wish you joy and peace and happiness this Eid. And remember, as your Attorney General, I will always have your back. Eid Mubarak, and I look forward to being together again soon. सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए नमाज ईद मसाजिद में अदा करने के बजाय घरों में अदा की गई, जिसकी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी भरपूर पासदारी की। उन्होंने अपने ईद तैयारा हादसा में शहीद होने वाले हमवतनों के नाम की। मेरी तरफों सारे दोस्त अहबाब जिन्ने भी है ने पाकिस्तान ते सऊदी अरब दे विच मेरी तरफों सारिਆਂ ਨੂੰ ईद मुबारक। ਤੇ ਅਸੀਂ सऊदी कानून ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ईद ਦੀ नमाज अदा की है। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, जिसकी वजह से हमने ईद की नमाज़ अपने घरों में अदा की है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हादसा पेश आया PIA का, उसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। और जितने भी उनके लवाकिन हैं हम उनके साथ खड़े हैं। इज्तिमाई और कोरोना की पाबंदियों की वजह से सऊदी हुकूमत ने इज्तिमाई पाबंदियों की वजह से घरों में नमाज़ अदा करने की तलकीन फरमाई है। और मेरी ख़ास दिली तौर पे जो तैयारा हादसान लोग हैं उनके घर वालों से ताज़ियत है। अल्लाह उनको हौसला दे, उनके घर वालों को सब्र दे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद। कहते हैं इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा का शिकार है। ईद के मौके पर घरों में रहें और महफूज रहें, सफाई का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह हम जल्द हालात पर काबू पा लेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। Assalamu alaikum everybody. Just want to wish everybody in Pakistan and the UK and around the world Eid Mubarak. We're going through a very tough time with the COVID-19. Inshallah, stay home, stay safe, stay with your loved ones, and keep your hands clean. And inshallah, we will come out of this in one piece. कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीठी ईद पर मीठा ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। हैदराबाद के शहरी ईद उल फितर पर ना सिर्फ खुद मज़ेदार केक खाते हैं, बल्कि अजीज़ों अकारिब और दोस्तों के लिए भी केक तोहफे के तौर पर ले जाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से शिराज भट्टी। मीठी ईद पर हैदराबाद के शहरी मीठा खाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि ईद उल फितर के रोज केक की दुकानों पर शहरियों का रश है और वो अपनी पसंद के केक खरीदने में मसरूफ हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है फ्लेवर्स के केक्स हैं, यहाँ पर काफ़ी केक्स। और आज हर बंदा अपने फ्लेवर के हिसाब से, अपने शौक से, यानी कि अपनी चॉइस से केक लेके जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मीठी ईद पर मीठा ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो न सिर्फ अपने अहले खाना बल्कि दोस्तों के लिए भी केक खरीद रहे हैं। मीठी ईद है तो मीठी ईद की स्पेशलिटी होती है कि हम केक्स की तरफ जाएं, बना बनाई चीज़ें यहाँ से बेकरी से लेके वहाँ पे अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ों अकारिम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ईद उल फितर के मौके पर मुनफरिद इकसाम के जायकेदार केक तैयार किए गए हैं जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन साजिद खान के साथ शिराज भट्टी, 92 न्यूज़, हैदराबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।